Life does not make any sense without interdependentness. We need each other, and the sooner we learn that, the better for all of us. Namaskar, I'm Shelly Arora with a new avatar at Shakti Speaks with a new Shakti. Let's meet a new Shakti, renowned Dr. Shona, who is a neuropsychologist. Hello friends, I am Dr. Sona Kaushal, a medical doctor and a neuropsychologist by passion. I have graduated from the KGMC Medical College, Lucknow. I did my MBBS from there. Then I have been teaching numerous medical students as a professor of medical biochemistry in numerous medical colleges. My passion of mental wellness led me to found Pari Foundation. So I'll be speaking about mental wellness in Shakti Speaks today, and I'll be telling you how important mental health is to your physical health and to your holistic health. So please stay tuned to Dr. Sona Kaushal in Shakti Speaks. Let's welcome our new Shakti, Dr. Sona Kaushal, with us on Shakti Speaks. Hello, ma'am. How are you? I'm very good, Shelly. Thank you. And thank you very much sparing your time for Shakti Speaks with us. It's my pleasure being here. Thank you so much. So nice of you, ma'am. Ma'am, you mentioned that you started Pari Foundation. So, what intrigued you to open that Pari Foundation, and what is the motive of Pari Foundation? This we want you to tell us and share with all of us. That's a wonderful question, Shelly. Actually, being a medical doctor, I had been in the hospitals, treating patients, learning about patients. What I saw was that there was a lot of stress in the minds of the patients and their relatives. And somehow, in spite of all the treatment, जितने भी हम उनका इलाज कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे. मतलब देर लगा रहे थे ठीक होने में. तो जो स्ट्रेस और टेंशन थी उनसे बात करने पे पता चला, तो वो it was compounding their disease usko, or they were making them more sick. So then something rang a bell in my mind ki kuch karna padega iska. But then when I passed out from college and came into the practice and all, the same thing I saw. The patients in the hospitals were very stressed, relatives stressed थे, पूरी family stressed, society stressed हो जाती है. तो ये stress word मेरे दिमाग में आया. I said I must do something about it. Simultaneously my children were growing up. तो मैं जब उनको देखती थी और उनके बच्चों का जो पीयर प्रेशर था, जो बाकी पेरेंट्स को देखती थी, उनमें इतनी स्ट्रेस थी, पेरेंटिंग इश्यूज थे, बच्चे आपस में बोल नहीं रहे थे, पेरेंट्स से बोल नहीं रहे थे. All this added up into my mind, and I said I must do something for the society, because mental wellness was a very big thing for me. I had so many people in my family also who had not been mentally well over the years. So I said I must do something for the society, and I must go out to the society and talk about mental wellness and how to be mentally well. But the problem was that I had no platform. I didn't know how to go about it. So I made a platform by the name of Pari Foundation, and it's an acronym, Shelly. Okay. It's a psychological assistance and rehabilitation in children. So with that Pari Foundation, I had a platform, and I took that to the masses, to the schools, and we spoke about children issues, stress management, parenting issues, anger issues. We all spoke about it. We also spoke about sex education. We are doing that still. We are talking about sex education, abuse, toxicity, emotional wellness. All that has been taken up in our Pari Foundation, and we go wherever we are invited, wherever we can, to spread this message that mental wellness is as important, if not more, than physical wellness. Very nice. So, Pari Foundation से परिवर्तन भी आया. Yeah, right, है ना? right. परिवर्तन समाज के लिए भी आया, Right. और एक परिवर्तन जो आपने ऑनलाइन भी शुरू करा. Correct. वो क्या करता है? platform? परिवर्तन is an online platform, और इस पे मैं like people wanted to reach out to me. Being a neuropsychologist, I was doing a lot of counselings and therapy work also, one-to-one भी, workshops or seminars maybe, and I was doing a lot of corporate trainings also. But when people want to reach out to me, so Parivartan is that platform where they Okay. can reach out to me, and we have these Zoom sessions and we have these online workshops. Sometimes I plan to open up some courses for them of Okay. whatever knowledge I have. So it's a teaching platform, it's a counseling platform. Okay. मैम, मेंटल वेलबींग का क्या महत्व है, और मेंटल वेलबींग अगर हमारी ठीक है तो उससे एक इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन आता है?
बहुत परिवर्तन आता है शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल वेलबींग है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटल वेलबींग मतलब आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो, जिस जिस भी आप काम में हो, घर पे हो, बाहर हो, वहां आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपका मन खुश है, आप शांत हो अंदर से, आप जो भी कर रहे हो वो आप हैप्पीली कर रहे हो, और आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी नहीं है, गुस्सा, एंगर, एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये नहीं है। कोई समस्या आती है उसका आपको पता है कि उसका सोल्यूशन कैसे लेना है ना, और आप खुश होके बात कर रहे हो, लोगों से जुड़े हो, सोसाइटी से जुड़े हो, दैट इज मेंटल वेलनेस। लेकिन अगर सोसाइटी, फैमिली, खुद, इन तीनों एरियाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर मेंटल इलनेस हो जाती है। So it is rightly said that happiness comes from inner fortitude, and inner fortitude is also bringing. It comes from the mental well-being. Do you say that? पक्की बात, ये तो है ही है। जैसे तुमने अभी क्वेश्चन एक पूछा मेरे से कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे आपने बोला कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हैप्पीनेस ना, अगर आप अंदर से खुश हैं और आपको ये पता है कि मेरी जो अंदर की फीलिंग्स है, दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन माय वे ऑफ थिंकिंग, मैं क्या सोचता हूँ, कितना सोचता हूँ, कितनी देर सोचता हूँ, तो जो रिसोर्स है हमारी, हमारे थॉट्स हैं। अब हमारे थॉट्स कैसे आते हैं वो अलग है, हमारे बिलीफ्स हैं, हमारे परसेप्शंस हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो उन चीज़ों को बदल के हम अपने थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे, अगर हम खुश रहेंगे, और इतनी हमें अकल है कि हमारी खुशी मेरी सोच पे डिपेंड करती है, बाहर से कोई क्या कह रहा है या बाहर से मुझे क्या मिल रहा है इस पे नहीं डिपेंड करती, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, कितनी देर सोचता हूँ, और कितना सोचता हूँ, ये इस पे डिपेंड करती है। ये मेंटल वेलनेस है, ये अगर हम समझ जाएं तो a lot of problems are solved. So it is also a sort of rippling effect, right? It starts from you बिल्कुल, and it creates your world beautiful. वंडरफुल। रिपल इफेक्ट तो है ही है ना शैली, दोनों चीजें रिपल इफेक्ट है। अगर आप हैप्पी हो, अगर आप शांत हो, अगर आप खुश हो, तो दूसरा बंदा भी आपको देख के शांत, खुश रहेगा। तभी हम पेरेंटिंग में, पेरेंट चाइल्ड्स में, पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि बच्चे को ठीक मत करो, बच्चे को ही लाते हैं ठीक करने के लिए हमारे पास। हम कहते हैं वो ठीक हो जाएगा, पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गुस्से, अपने अपने अंदर अपनी हैप्पीनेस को लाओ, आपको देख के आपका बच्चा बदलेगा। वी डोंट हैव टू सेट एनीवन राइट, वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और रिपल इफेक्ट हैप्पीनेस का भी है। इफ यू आर हैप्पी, आपका आस का वातावरण, स्माइल, एवरीबडी विल स्माइल, वातावरण अच्छा होगा। बट इफ यू आर एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, लोग दूर रहेंगे, और दैट ऑल्सो हैज अ रिपल इफेक्ट। तो इमोशंस बहुत एनर्जी कैरी करते हैं, हमें क्या इमोशन कैरी करना है वो हमारे ऊपर टोटली 100% डिपेंडेंट है। मैम दैट्स सो वंडरफुल इफ एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि हम जो अंदर है वही हमारे बाहर है, और जो बाहर है वही हमारे अंदर जाएगा। हम आपको अभी तक एज डॉक्टर सोना जान चुके हैं कि योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंसेस और योर कंट्रीब्यूशन, बट जो अंदर एक शक्ति है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि हाउ दैट evolved and how it is contributing back to the society and uplifting other females or the women section. It's a very important question, and it applies to everyone, not only to me. I feel that, Shelley, to all women, to everyone in particular. Two things: if you give back to society, if you give back, if you do something and you're giving something, you are in a happy mood. So अगर खुश रहना है तो देना सीखना चाहिए हमें। देना नॉट इन द मटीरियलिस्टिक सेंस, इन एजुकेशन, इन एनीथिंग, इन काउंसलिंग, हम थेरेपी में देते हैं, वर्कशॉप्स में देते हैं, keeps you happy. So basically तो एक selfish motto है that I want to be happy, which we all want to be happy. How can I be happy? So I can be happy by giving. And what can I give? The knowledge which I have. It's my duty to share that. And if I can help people be better versions of themselves, I feel I've done my duty. And of course, being gratefulness is another thing. Being grateful to be able to do that. Being grateful to you to be able to meet you, to ask me such questions, to Shakti Speaks to give me this platform to speak. So gratefulness भी एक happiness देती है. It keeps you humble. It keeps you grounded. So it's very very important for all women to realize that. औरतों में ये सब समझना चाहिए, महिलाओं में, कि उनके अंदर शक्ति है, भरी हुई है,
उसको यूटिलाइज करना है। आप किस चीज में अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो दूसरों के लिए, वो करिए। और जब आप दोगे, करके किसी को सिखाओगे, आगे बढ़ाओगे, अपने साथ लेके आगे चलोगे, आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस और इतनी सेटिस्फैक्शन आएगी कि योर वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। So it's very important to make a beautiful world together. करेक्ट। Ma'am, very good timing with your meeting. I think 10th of October we are having World Mental Health Day. So what is your message? And we also want to know what is the theme this year. Yeah, it's a very very important day and a very important questions. So the awareness ये है कि 10th अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है। एंड ये 1992 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, यू नो, दिस प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेन एम ये थी कि दे वांटेड द फेडरेशन व्हिच स्टार्टेड इट वांटेड द मैसेज टू गो कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम है उस दिन स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स होते हैं जिस चीज को हाईलाइट किया जाता है, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। इस पे कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है, कोई शर्म की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मेंटल इलनेस है किसी तरह की भी, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस, खांसी जुकाम बुखार है, वैसे ही मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। अवेयरनेस होनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं, काउंसलिंग कराएं, थेरेपी ले। तो कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है इसमें, अवेयरनेस करनी है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है ताकि इसकी चर्चा हो। So this is the mental health day. This is the importance of that. हर साल इसकी थीम होती है। तो this year 2025 theme of mental health day is humanitarian help or work in the time of crisis. क्राइसिस मतलब जैसे जब भी अभी धरावली में हुआ है या सुनामीज आई, अर्थक्वेक्स आए, इसमें हम लोग, आप देखते हो WHO, ये एड वो एड, एवरीबडी, रेड क्रॉस, सब लोग जाके हेल्प करते हैं। वी बिल्ड शेल्टर्स, वी गिव फूड विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, विच इज सच गुड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। लेकिन इसमें मेंटल हेल्थ डे वाले दिन आज हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की भी चर्चा कीजिए कि जो इंसान इस दुविधा से निकला है, जो इस प्रॉब्लम से निकला, अर्थक्वेक या सुनामी या फ्लड्स, या वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सपने आते हैं, डर के निकलता है, डर, भय, चिंता, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें उसमें इतनी जुड़ जाती हैं कि अब आगे क्या होगा मेरा। स्पेशली बच्चों में, बच्चे तो बहुत डर जाते हैं। तो उनकी अगर ये डर और चिंता और एंजाइटी हमने अब खत्म, एड्रेस नहीं करी, उनको स्ट्रॉन्ग, केपेबल, रिजिलियंट नहीं बनाया, तो वो बड़े होके भी ऐसे ही कमजोर बने रहेंगे ना। करेक्ट। तो दिस इज द मैसेज कि involve mental wellness into the humanitarian works in the crisis which we have. Yes. So this is what we are doing and I'm very proud of doing it. अभी जोशीमठ में भी हुई थी तो मेरी टेली हेल्पलाइन चली थी। We are dealing, we have a परी टेली हेल्पलाइन also 24/7 जो रन करती है, जो हम सुसाइड, डिप्रेशन के केसेस आते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। फोन पे काउंसलिंग तो नहीं होती, बट लिसनिंग एंड बीइंग अ सपोर्ट सिस्टम इज आल्सो अ बिग नीड। और अभी जो धरावली में भी जो अभी हुआ है फ्लैश फ्लड्स, उसमें भी हमारी टेली हेल्पलाइन चली है एंड वी हैव रिसीव्ड मेनी सच स्ट्रेस कॉल्स कि डर लग रहा है मैम, अब क्या होगा मैम। तो उनको जब आप एड्रेस करोगे, उनको लगता है कि कोई सुनने वाला, अपनी बात तो कही उन्होंने, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। Ma'am, since you are here with us at Shakti Speaks, so we want आप अपनी तरफ से उन सभी शक्ति को एक मैसेज दें जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकती है, पर वो घर रह के भी अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रख सकती है, जिससे उनका परिवार और उनके आसपास का वातावरण खुशहाल रहे। बहुत बढ़िया शैली, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, महिलाएं जो हैं, राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर ओल्ड एज, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं। उनके अंदर बहुत सारे शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस और मेंटल चेंजेस आते हैं उम्र के साथ। बचपन में बच्ची बड़ी हो रही है, फिर प्री प्यूबर्टी में आई है ना, फिर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उसके अंदर, फिर प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंट आती है, तब उसमें चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, फिर हार्मोनल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ी होती है, फिर जॉब की क्राइसिस, फिर मैरिज, फिर सारे स्ट्रेस हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होता है, फिर मैरिज, फिर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ से पहले एंटीनेटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लेडीज आजकल बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं, क्या होगा, कैसे होगा। फिर उसके बाद
ड्यूरिंग जो अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी बहुत स्ट्रेस होती है, जिसको हम स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं, वो हमें हम मैनेज करनी पड़ती है। फिर पोस्ट नेटल, बच्चा होने के बाद आपने सुना होगा पोस्ट नेटल डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है कि बच्चा हो गया, बंध गया, अब कैसे मैनेज करूं, तब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फिर आप मीनोपॉजल आ जाते हो, मीनोपॉज से पहले आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज्यादा, फिजिकल और मेंटल साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिर मीनोपॉजल चेंजेस, फिर पोस्ट मीनोपॉजल चेंजेस, इतने हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस है लेडीज के अंदर। फिर ओल्ड एज में आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, दिस दैट, कैल्शियम कम हो जाता है, ये सब, फिर डिमेंशिया, ये सब होने लगता है। तो देखो आप, जीवन में उथल पुथल है महिलाओं के, तो हमें करना क्या है, ये इस बारे में जानना है, समझना है, और हर स्टेज पे अपना ख्याल रखना है। ये ध्यान में रखना है कि लाइफ में 3 चीजें होती हैं शैली, मैं, मेरा काम, मेरी फैमिली। तो पूछो तो कहती है अभी हमारे लिए तो हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपके लिए सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट हो। आप पहले ठीक रहो, हेल्दी रहो, खाओ सब, अपना बैलेंस डाइट लो, अपने जो भी विटामिन हैं वो लो, डॉक्टर से मिलो, अपने को स्वस्थ रखो मानसिक और शारीरिक तौर से। कोई प्रॉब्लम है तुरंत हेल्प लो, फ्री हेल्पलाइंस है हमारी, तो परी हेल्पलाइन हमेशा अवेलेबल है टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस, वो सब लो, और उसके बाद आपका फैमिली वर्क तो नॉर्मली ठीक होगा। तो महिलाओं को ये है कि अपना ख्याल रखिए। ये भी है कि कुछ ये भी मत करिए कि बच्चों के साथ और उसके साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोल, कई बार मैंने देखा शैली, औरतें जो है ना बहुत एग्रेसिव और एंग्री भी हो जाती हैं, क्योंकि इतना अंदर बिल्टअप कर लेती हैं स्ट्रेस अपने अंदर, वो फैमिली में रिफ्लेक्ट करता है। तो वो उनको मैसेज है, अपना ख्याल रखो, शांत रहो। अगर आप शांत रहेंगी, आप नींव हो घर की, अगर आप शांत रहेंगी, आपका वातावरण, आपका घर, ऑटोमेटिकली बच्चे भी शांत रहेंगे। और दूसरी चीज, जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करो, लर्न करो, ग्रो करो। जैसे ही आप लर्न और ग्रो करोगे, टाइम वेस्ट ये देखने में, वो देखने में, गप मारने में, क्रिटिसाइज करने में मत करो, कुछ सीखो। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, सीखने से क्या होता है, ब्रेन के सेल्स डेवलप होते हैं, डिमेंशिया या लेट एज वो नहीं होता। दूसरी चीज, फॉरगेटफुलनेस नहीं होती। और सीखो, आगे बढ़ो, अपनी हॉबीज को टाइम दो, कुछ मी टाइम निकालो, अपना आत्मसम्मान ऊपर रखो, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस ऊपर रखो। अब्यूजिव या टॉक्सिक लेडी या वुमेन मत बनो, ना पेरेंट बनो। और अगर तुम्हारे घर में अब्यूज या टॉक्सिसिटी है तो उसको ना बोलो, और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। ये मेरा मैसेज है। Lovely message. So simple mantra is self care, self love, self growth. करेक्ट, एब्सोल्युटली शैली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सेल्फ केयर, अपना पहले ध्यान करना है, सेल्फ लव, मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, और ग्रोथ तो करनी करनी है, सीखना ही सीखना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। Thank you to you, ma'am. You have been sharing such wonderful, insights, and especially for our Shakti Speak, all the females around us. This is what we want to communicate through Shakti Speak, that every woman has a power within, and they should at least know that what is their potential and how they have to channelize it. सो थैंक यू वेरी मच मुझे शक्ति स्पीक्स में इनवाइट करने के लिए। होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा जो भी मैं आज आपको बता पाई। मेन चीज मैं ये बता पाई आपको शक्ति स्पीक्स में, कि हर शक्ति में जो है, जो हर लेडी में बहुत सारी शक्ति होती है। स्ट्रेस को दूर रखो ताकि आपकी जितनी शक्ति है एक अच्छे उसकी तरह बाहर आ सके। तनाव से बच के रहो, खुश रहो, और मेंटल इलनेस दिमाग पे हावी ना हो, इसलिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना करते रहो। अगर मेरे से जुड़ना है तो आप इस चैनल पे आके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका सहयोग देती रहूंगी। और भी बहुत सारी शक्तियां इस चैनल पे आएंगी, अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताएंगी। जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा, जरूर देखते रहिएगा शक्ति स्पीक। इससे आपको जो है बहुत ज्यादा आपकी जिज्ञासा, नॉलेज और अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। सो प्लीज बी कनेक्टेड टू शक्ति स्पीक्स। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सोना। बने रहिए शक्ति स्पीक्स के साथ और नई शक्ति के साथ जुड़ने के लिए।